Wow. नमस्कार, आज का हमारा मुद्दा है नारी पर जबरदस्ती और ये थप्पड़ होना चाहिए हर नारी का। बैटरी नहीं देना, भोसड़ के जा रहा है। बैटरी दे भाई एक बैटरी निकाल लेना अपनी बैग से। ऐसा तू भी करेगा? तो ये थी कुछ झलकियां हमारे नए शो की। आप सब यहाँ आए आज। Rose Movies, we've always tried to do different kind of programming, and we are so excited to be partnering with Sony again. One channel where we get to try out different kinds of concepts, and also because we've managed to get a stellar cast together. Sorry. Okay. So without much ado, we shall open the floor later. May I invite on stage the gorgeous Rajiv Khandelwal and the spectacular Kritika Kamra. है ना? उनको बीच में बिठाना है। Didn't even. Yeah, all right. So you want me to stand up? All right. So your question is that I was missing for the last 3 years. Last one was Sach Ka Samna, and now I'm back. And what was the question? What made you select this show as your comeback show? The premise. You know, I've been wanting to be part of a season for a very long time now. And the moment I heard about this one, the moment I got a call, and I was told about the premise of the show, I was excited about it. How have you prepared for this character of a reporter? You know, I've been around for, I think, about a decade now. You know, so you've been interacting very closely with media. You know, you have friends in media. You keep answering the questions day in, day out. So you have a fair idea about how the world, you know, operates, how it functions. So I'm playing an editor-in-chief in the show, and I think the research team had done an amazing job. So we did a workshop where my director, Goldie, is pretty well versed with the world of news. So I think he had to do all the hard work. I just had to recall all my moments that I've spent with the media, and I think that did it all. Rajiv, you're furious smooch for the first time on the small screen. We've never seen you doing such, I mean, smooching in films or otherwise. Would it be too much if I say, are you turning Imran Hashmi? I'll have to do at least 10 more such shows and such kisses to even reach close to him. You know, and this is not the first time that I'm doing it. And the idea was not about the kiss. I think the slap was the one that was the first. You know, probably because it was actually hit very hard. And that's what I think, and I was hoping that is what hits the audience also very hard. You know, so for me, it was never about kissing. It was about the slap that makes a difference. That is why on Twitter, by the way, what was trending was not Rajiv kisses Kritika. It was Rajiv slapped, Kritika slaps Rajiv. You know, if you've seen Newsroom, it's not really a show that would work in this country. What we're inspired by is by the media. In fact, one of our inspirations behind the show, Ajay Balvankar, is right here. If I may please request you to join us. You know, the way the news is going now, it's like in everybody's homes. You know, now, reporters, yes, and especially anchors also have become sort of heroes, you know, for a lot of the youngsters, and it's impossible to forego the influence of news. So I think it was a matter of time before we actually went out there and did something to represent this part of entertainment. Sorry? You know, I haven't seen that film.
Yeah, I know. I remember the songs. I remember the songs. But if we do as well as they did, we'll be very happy. It's actually similar. When so many like-minded people come together, you make a great show. And which is why when everybody wanted to do this show, which was different from everything else that was running on TV, I said, this is what I want to be a part of. And I'm very convinced that you also, after watching the episodes, will agree that it is different and it will stay different till the end. So that's what. About the kiss, I also thought that the context was really important and the context was something else. And it came across. And I don't think I even questioned when the script was narrated to me. I didn't ask ki ye kyun hai, ya why am I doing this, what are people going to think, because I think it's kissing generally is a little overrated. If it's okay in cinema, what's the problem with TV? And both you and Kritika and Rajiv, both of you, did you go to any news channel and observe them for a full day to know what exactly you have to do? See, for me, I've been a number of times to different news channels, and I was also the host of a season called Sach Ka Samna, and where I had a earpiece in my, I was working with an earpiece, and I was dealing with a PCR van, and I have that little hang of how you present while you are live on camera, why you present, even though it was like hosting a show, but it is very similar to a news presentation, I guess. Also, I did meet Rajdeep recently, Rajdeep Sardesai recently. I've had an interaction with Arnab when I had gone to his News Hour show. So we did our little bit of research, but as I'm saying again that we've been around for a while, and you know exactly how it functions. As far as the content is concerned, I think the research team got all the facts and things in place. So it's a very real world of media. It's not a real world of media. It's a very real world of media where I'm very sure that all of you are definitely going to connect. You'll probably see your lives, on screen. After doing a show like this, do you think you will become more patient when you're subjected to very difficult and harsh absurd questions? Yeah, I think I'll be more, I am already, I'm very chilled out when you throw questions at me. I think I'll probably never take anything in a negative way each time you throw any question at me. I think I can deal it with a very, very cool mind. I'll know exactly where you are coming from. I'll understand the pressures of the editor. Okay, I have an interruption. I'm sorry. Just 1 second. Could I request the panelists to please sit and, it'll be, the whole time you guys will be standing, it'll become a little tiring. I know. हाँ? हाँ, वो हटाए थे. वो हटाए थे. वो Can we, photo opportunity आपको बहुत मिलेगी बाद में. Can I please request? नहीं तो ये सारा दिन खड़े रहेंगे. Are you guys okay with this stand? ठीक है. Gaurav, we are okay. Relax. I think we'll. ठीक. कृतिका का जवाब है तो कृतिका बीट हैंडल मैं भेजता हूं उनको बीट इन द शो. सो अभी तक जो मैंने कवर किया है वो कुछ पॉलिटिकल केसेस देव बीन अबाउट मिनिस्टर्स या जो भी कुछ हमें उल्टी सीधी खबर मिलती है उसको एक्सपोज करना. मतलब बेसिकली हम स्कूप्स करते हैं. किस तरह से जो एंटरटेनमेंट बीट करती है हमारे ऑफिस में जो कैरेक्टर है वो भी मेरी दोस्त हैं, तो मुझे सब गॉसिप वहाँ की भी मिलती रहती है. अगर आप अच्छा डांस करते होंगे तो जरूर नजर आएगा. नहीं, और पॉलिटिकल बीट पे डांस करना होता है पर नॉट दिस काइंड ऑफ डांस. कुछ Rajiv, we've tried to stay quite true in the sense that we're not really, when we're saying that we've attempted something different, we have tried that we're not going to suddenly break into Dandiya Ras and have a Sangeet in the newsroom. And so we're trying to stay, but that's a great idea, Kritika, next show. I need some inspiration, I need somebody to like... Oh, next show, this next show. This could be a whole new press conference. Rajiv. Hi, Srishti. Hello, hi.
सृष्टि, अगर हमने देखा है टेलीविजन इंडस्ट्री में औरतों का ही बोलबाला है, चाहे वो एकता कपूर हो चाहे कोई भी हो। एक जिस तरह से हम आपके शो को देख रहे हैं, एक नया जॉनर नज़र आ रहा है हमें, तो आप भी कुछ चेंज करना चाहती हैं इस टेलीविजन, मतलब सास बहू के इन चीज़ों से कुछ नया लाना चाहती हैं? कि मैं तो सिर्फ एक कहानी कहना चाह रही हूँ, फिलहाल ये कहानी है। और मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि हमारे थ्रू हम टेलीविज़न को बदलने वाले हैं या ये करने वाले हैं वो करने वाले हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक अच्छी कहानी कहें और अपने दर्शकों को एंगेज करके रखें। बाकी या विमेन रॉक। राजीव, और एक चीज़ हमने देखी है, आप जो दिखा रहे हैं इस तरह से लव स्टोरी दिखा रहे हैं आप, जनरली देखो तो रिपोर्टर्स को तो टाइम भी नहीं होता इस तरह की चीज़ों के लिए। ये सारे रिपोर्टर्स आप ही को देख रहे हैं यहाँ पे जितने बैठे हैं। इसीलिए इनको रोमांस न्यूज रूम में ही ढूंढना पड़ रहा है। बाहर जाने को टाइम नहीं होता। सीधे शादी हो जाती है, इस तरह का रोमांस नहीं। There are some examples out there, I know. All the single ladies. There are some examples sitting next to you. सीधे शादी हो जाती है। Raju, on your right. And I have seen that love story happening in front of my eyes. Yeah. राजू, आपसे जानना चाहूंगा, एज एन रिपोर्टर कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने में बिलीव करते हैं आप? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं अगर रिपोर्टिंग करूंगा तो कंट्रोवर्शियल सवाल जरूर पूछूंगा। जी, तो कभी कभी इंटरटेनमेंट बीट में ऐसा होता है कि जो पीआर होते हैं वो कंट्रोवर्शियल सवाल पूछने नहीं देते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आप कौन सा रिपोर्ट करने से चूक जाते हैं? छाप तो फिर भी देते हैं ना आप, चाहे वो सवाल पूछने दें या ना दें। वहाँ फिर आके तो आप पूछ ही लेते हैं। हाँ। और कई रिपोर्टिंग में कई सारी चीजें होती हैं, तो क्या कुछ आपको पसंद है और क्या कुछ नहीं पसंद है? मैं सवाल समझा नहीं एक्चुअली। मेरा मतलब है रिपोर्टिंग में लाइव होता है, पीटीसी होता है, वॉक थ्रू होता है, देन सवाल जवाब होते हैं, तो कौन कौन सी चीजें आपको पसंद है रिपोर्टिंग में और कौन कौन सी चीजें ऐसी भी हैं जो शायद आपको नहीं पसंद होगी? मेरे कैरेक्टर को शायद इस समय सब कुछ पसंद है, न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है उसे पसंद है, और हर चीज़ को प्रेजेंट करना चाहता है, अपने तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है, तो मेरे कैरेक्टर को इस समय सब कुछ पसंद है। कृतिका जी, आपको लगता है कि रिपोर्टर्स के बारे में जो आपने सुनी सुनाई बातें आपने सुना है किसी फ्रेंड से या यहाँ से वहाँ से, तो क्या उसके बिहाफ पे आप समझते कि बस उतनी ही लाइफ है रिपोर्टर्स की? नहीं, कुछ रिपोर्टर्स मेरे दोस्त भी हैं, बट उसके अलावा भी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो एक्चुअली मैंने जाके एक न्यूज़ स्टूडियो में टाइम भी बिताया है। आई स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स देयर। और फिर जब हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ भी जब हम मिस्टर राजदीप सरदेसाई को मिले, हमने वहाँ भी उनके ऑफिस में थोड़ा टाइम बिताया है। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी मेरा जो कैरेक्टर है वो भी जूनियर रिपोर्टर है जो कि काम सीख रहा है, तो मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम तक सीख सकती हूँ अभी। राजीव एंड कृतिका, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। कई बार ये हमारी ज़रूरत होती है कि हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में नेगेटिव खबरें भी करें, लेकिन इसका सेलिब्रिटीज़ बहुत बुरी तरह से मतलब बुरा वो मान जाते हैं, फिर आगे उसके रिलेशनशिप खराब होते जाते हैं। तो आप जब ये किरदार निभा रहे हैं तो आप महसूस करते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है रिपोर्टर्स की? अभी तो जब मैं किरदार निभा रहा हूँ तो मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेलिब्रिटी को अच्छा लगे या खराब लगे। मैं लिख देता हूँ। लेकिन पर्सनली आपको अगर आपके साथ ऐसा पर्सनली अगर आपके बारे में कभी नेगेटिव खबरें आती हैं तो आप रिएक्ट करते हो? नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो चेन रिएक्शन हो जाता है फिर। तो इसलिए आई थिंक साइलेंस इज गोल्डन जब आप को ऐसी सवाल पूछे जाते हैं तो। एंड बाय द वे, ऐसा पहले हफ्ते में ही आपको एक ऐसा इंसिडेंट नजर आएगा शो में जो शायद आपके सवाल का जवाब दे देगा खुद। ऐसा ही कुछ एक वाकया हुआ है हमारे शो में जहाँ पर किसी सेलिब्रिटीज के से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। कृतिका, आपसे जानना चाहूंगी, इस सीरियल में आप रिपोर्टर बनी है, तो आज राजीव पे कोई खबर बनानी हो और उसको शो को लेकर, तो क्या बनाएंगी? हेडलाइन क्या देंगी? अभी तक मुझे कुछ पीछे अभी तक तो उनके पास जो मामला है मेरे ख्याल से वो पेज 7 पेज 8 वाली न्यूज मिलेगी इनको। फ्रंट पेज हेडलाइन वाली इन्हें मैंने थोड़ा और इंतजार कर रही हूं। एडिटर रिपोर्टर को दबा देता है ऐसे। तो एडिटर को हाँ, एक्चुअली खबर तो मेरे पास ही आएगी ना। मैं बोल सकता हूँ लेकिन आई थिंक आई वांट सृष्टि टू से बिकॉज इनका शो है। देखिए, ये there is a lot of things that happen behind the scenes that we have discovered while working on this show. So we are trying to show this is a span in time in the life of these reporters, and what we're trying to do is how the news is brought to you,
एंड द ह्यूमन साइड ऑफ द रिपोर्टर्स. क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है जो हमें पता चला है कि आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द एंटरटेनमेंट बीट बट इन द अदर बीट्स, कि यू आर नॉट अलाउड टू स्टे अप टू व्हाट यू बिलीव इन. समटाइम्स यू हैव टू ऑल्टर इट बिकॉज द प्रेशर्स ऑन द टॉप. समटाइम्स यू आर फोर्स्ड टू हाईलाइट समथिंग दैट यू डोंट वांट टू. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन व्हेन दिस न्यूज़ जस्ट कम्स. वो आप आधे घंटे का सेगमेंट देखते हैं सब लोग और दैट्स इट. बट व्हाट गोज बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दैट and the human drama behind it is essentially what we want to show. और एक क्लासिक जो डिफरेंस होता है एक रिपोर्टर और एडिटर के बीच में, जो एक्टिव होता है कि मेरी न्यूज़ है और मुझे वो न्यूज़ दिखानी है और बोलते हैं नहीं दिस नॉट पार्ट ऑफ आवर एजेंडा, तो वो एक नेचुरल टिफ है एक एडिटर और एक रिपोर्टर के बीच में. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ स्पार्क्स बिटवीन बोथ ऑफ देम एज अ एंटायर सीरीज द वे लव स्टोरी विल बिल्ड अप. तो वो तो ज़रूर है. और जिस तरह से टाइम गंवाया जाता है न्यूज़ चैनल में और न्यूज़ एनवायरनमेंट में, तो इट्स नेचुरल है कि एक एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल इंटरेक्टिंग एंड दैट्स वेयर थिंग्स हैपन. वी हैव सीन लॉट्स ऑफ न्यूज़ गाइज गेटिंग मैरिड टू ईच अदर. आई मीन इट्स दैट्स अ लव स्टोरी. इट्स ऑल्दो इट्स लव स्टोरी बट देयर आर लॉट ऑफ दिस एंगल्स व्हिच आर गोइंग टू गेट एक्सप्लोर्ड. See, also I don't think that there is any intention of showing anything कि हमें ये दिखाना है. It's a backdrop. It's a world of मीडिया जहाँ पर ये लव स्टोरी है, जहाँ पर ये कहानी आप देखेंगे. इट्स अ स्टोरी सेट अप विद इन द बैकड्रॉप ऑफ मीडिया. और आज के तारीख में इतना रिपोर्टिंग और न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स इतने बड़े हैं, तो इतने ज़्यादा लोगों को अभी इस दुनिया के बारे में पता है बट उनको इनसाइड पता नहीं है. दे आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद न्यूज़ टुडे बिकॉज सो मेनी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स बीइंग अराउंड. सो विद दैट definitely what is inside is also will be part of curiosity for audiences, in a big way. Hi Shrishti. Hi. You have spent a lot on this project. How sure you are? It's a big project, just like a movie. How sure are you about this show particularly? And your reason for spending so much for this? I'm very sure about this project. I feel that if you get characters that are engaging, I love watching TV. I do TV because I enjoy it. Okay, we also do feature films at the same time, and a lot of people ask me why you're doing a television show. I enjoy television. To be able to interact with the audience every day, to tell a story in all its facets, it's fantastic. And I'm so happy that the world is opened up to the Western television industry, and hopefully now we will all start bringing that respect. This show was a very, very important show for us because we are trying to see. हमारे देश में क्या होता है ना? There are very, very different kinds of people. And there is a whole segment of people, like I believe, like all of us, okay? We're also normal people. But at the same time, we are not represented necessarily on TV. Sony has been gracious enough to give me an opportunity to speak to these people, people who I know and people who I understand, and who also step out of the house, alongside with the people who have the opportunity to stay at home. So I'm very sure about the show. I'm very excited about it. Thank you. Important for us is that ये show ऐसा है जो नॉर्मल घर के अंदर सीरियल जो शूट किए जाते हैं वैसा नहीं है. So we definitely know that people who want to go for that kind of programming are not going to come onto this show. So there is a floating audience definitely that doesn't want to see a typical soap, which is what we are targeting. If you want technical terms, then it's female 16 to 34, SEC, ABC. That's a very technical way. But what I'm trying to say is that from our perspective, हमारे देश में अभी सिर्फ घर के अंदर ही औरतें नहीं रही है, घर के बाहर भी गई है और उनके रिश्ते घर के बाहर भी पल रहे हैं और ये हमें दिखाना है. और इसके वजह से एक उसका स्थान है न्यूज़ रूम, विच इज एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी ऑफिस और एनी ऑफिशियल वर्किंग प्लेस वेयर यू कैन फॉल इन लव विद अ कलीग और यू कैन हैव अ केमिस्ट्री विद योर कलीग. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू. तो जिनको वो घर के अंदर के रिश्ते देखने हैं वो बाकायदा हमारा शो इतना पसंद नहीं करेंगे और शायद पसंद कर भी लेंगे, पर हमको मालूम है कि जिनको वो नहीं देखना है वो जरूर आ जाएंगे. So it's a definite alternate to what is being shown right now at 9 o'clock. Hi, this is Abhishek from NewsX on your left here. So basically, you guys are also related to the Indian film industry and the new law that's being passed that, in multiplexes from 6 to 9, we'll have Marathi cinema that is going to be shown. So to Shrishti, Kritika and Rajiv, I would want to know your reaction regarding the same law that's being said. We'd love to do a feature on it in the show. No, but as of now, and get other people's opinions about it. Yeah, but I mean, this is a press conference for the show, so that's just a question from a reporter to a reporter on reporters. So, if you guys could please give a reaction, you know how important it is. You think reporters ask questions to a fellow reporter? Do you think? Yeah. They just share information, don't they?
What do you feel about it? हाय राजीव. हाय रवि जी. हाय कृतिका. राजीव, आप एक बहुत सटल एक्टर माने जाते हैं, फिल्मों में भी, टेलीविजन में भी. कृतिका, आपने भी बहुत अलग अलग रोल किए हैं. तो आप लोगों को इस किरदार में कबीर और अनन्या के कितना अपने आप को एज अ कैरेक्टर, मतलब एज एन एक्टर चेंज करना पड़ा, कितना लाउड आप लोगों को बनना पड़ा और कितने बदलाव करने पड़े एक्टिंग स्टाइल में, क्योंकि ये अलग तरह का शो है और सब्जेक्ट भी काफी अलग है. तो एक्टिंग स्टाइल में कितना बदलाव और कितना लाउड होने की कोशिश आप लोगों ने की है? देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपनी डिक्शन पर, क्योंकि जब न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं आप तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बातचीत में. तो मैंने बहुत सारे रीटेक्स देने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कोई वर्ड फंबल हो जाता है या मैं कहीं कोई वर्ड खा जाता हूँ. तो मुझे, एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग इज़ नॉट लाइक कि आपने कुछ भी सोचा और बोल दिया. समटाइम्स यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स. तो वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ी. दूसरी बात, आई थिंक जो डायरेक्टर हैं गोल्डी, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं शो में. तो जो भी चेंज अगर आप देखेंगे, मेरी टेंडेंसी थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में घुस जाऊं वाइल परफॉर्मिंग, बट अगर आप मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर देखेंगे तो आई थिंक इट्स बिकॉज गोल्डी, बिकॉज ऑल्सो आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन एंड गिविंग माई ओन ओपिनियन. ये शो में बहुत बड़ा हाथ है डायरेक्टर का, और जो आप देखेंगे आई थिंक इट्स हिम. एब्सोल्युटली. उनका, हमारे डायरेक्टर का जो काम निकालने का तरीका है वही बहुत अलग है. He doesn't say okay to shots that are generally okay. He always wants you to do something different. तो मज़ा आता है. For me it's an ongoing process. मैं रोज़ सीख के कुछ explore करके अलग करना चाहती हूँ. You see a lot of bubbly leads on television and I have also played those characters. But मेरी ये बहुत sincere कोशिश है कि मैं शो में अलग दिखूँ और बिल्कुल अलग लगूँ. आपको वो किसी और कैरेक्टर को रिमाइंड ना कराए. हाय राजीव, मेरा सवाल आपसे कि अभी आईपीएल भी चल रहा है, उसी दौरान ये शो भी लॉन्च होने वाला है, और ये 8 से 11 का जो समय होता है उस समय किसी न किसी टीम का मैच होता ही रहता है. तो आपको लगता है कि ऑडियंस जो है वो बिखरेगी, क्रिकेट की तरफ ज्यादा जाएगी? सुना है मैंने आईपीएल के काफी मैचेस रीशफल कर रहे हैं, बोलो 9 वाले मैचेस कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा आपके टाइम के हिसाब से? हाँ, वो लोग कुछ ऐसा सुना है मैंने कि हाँ वो उस टाइम पे ब्रेक लेंगे 9 से 9:30 बजे का. ऐसे नहीं हो रहा है वो जोक. नहीं, मैं जोक को समझ रहा हूँ, बट क्योंकि आईपीएल हमारी नेटवर्क पे है तो मैंने इसीलिए वंडरिंग कि ये राजीव. मेरा अगला सवाल आपसे ही होने वाला था कि आपके ही नेटवर्क का है, तो एक टाइम पे अगर ऐसा इतना बेहतर शो अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो इसको बाद में भी कर सकते थे, मई में, जून में. आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट योर कॉन्फिडेंस. जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आप तब नहीं सोचते हैं कि यार कितना सिक्योर प्ले करें. So when you know that there is an audience, a channel, of course, पूरी रिसर्च करते हैं. और दूसरी बात है कि पिछले 3 सालों से आईपीएल का थ्रेट जो था जनरल एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे वो कम होते जा रहा है. और अभी आप देखोगे तो उस पर प्रभाव या असर नहीं पड़ता आईपीएल का. जनरल एंटरटेनमेंट जीईसी जिसको कहते हैं कॉमन पार्लेंस में, वो एक है. दूसरी बात है कि आईपीएल हमारे पास ही है तो हम उसमें प्रमोट जरूर कर सकते हैं. तो हमें वो एक लेवरेज मिलता है कि यही शो देखो, और मैच सारे ही अच्छे होते हैं ऐसे नहीं, कभी कभी जल्दी भी खत्म हो जाती है. तो हम विल बी अ वायबल ऑप्शन ऑलवेज. मुझे लगता है मैं काफ़ी, मतलब आई डोंट वांट टू बोस्ट, मेरे से क्वेश्चन मत करना, बट मुझे भी न्यूज़ देखनी एक्चुअली काफ़ी पसंद है. इट्स अ कॉमन इंटरेस्ट फॉर एवरीबडी हु इज हियर, इंक्लूडिंग आवर डायरेक्टर गोल्डी. सो वी ऑल वॉच न्यूज़ और हम इनफैक्ट डिस्कस भी बहुत कुछ करते रहते हैं जो करंट अफेयर्स है. तो मुझे जनरली, एंड थैंक्स टू ट्विटर, मुझे जनरली पता होता है कि क्या हो रहा है आसपास. हाँ, पूछिए मुझसे. Yes, of course. Everything that news covers, we are hoping to cover. And now then you won't watch my episode, no? If I tell you everything. No, see, the thing is, no. No, because you see, that's essentially also the reason why it's not newsroom as you're imagining it. Nachiket, my answer is for you. Yo. Yeah. My question is for you, sorry. How are advertisers responding towards the show? Because we have seen that you guys have got already Fruity as a presenting sponsor, title sponsor. So how are advertisers responding? See, advertisers are backing the fact that it's a very different and differentiated concept. Fruity is a cold drink that sells well in the warm season, and they're backing us. So to answer the IPL question, we've got sponsors coming on because their belief is that this will not just get a female skewed audience. Their belief is that this will get a universal audience. इसमें love story के लिए औरतें देखेंगी और backdrop और उसका pace, उसकी tension, उसके लिए the males will watch. So we are getting a uniform set of advertisers. It's not the classic
female targeted FMCG advertisers that we're getting for this. आप सभी से एक सवाल है। राजीव, आप बने हैं एडिटर, ठीक है। आज आप हालात देख रहे हैं हमारे इंडिया के, भ्रष्ट करप्शन है, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप कोई मुद्दा उठाना चाहें, अपने इसमें कुछ चीज़ आप चेंज करना चाहें, आपके हाथ में कमान है, आप दिखा सकते हो, तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे आप चेंज करना चाहेंगे एज ए न्यूज़ एडिटर? बहुत सारे मुद्दे दिमाग में आते हैं हम लोग त्रासित हैं बहुत सारे मुद्दों से। तो आई can't think put my finger on just one मुद्दा। I think corruption is one, I think infrastructure is another thing, I think population, education, illiteracy भरे पड़े हैं। So I think जिस दिन जब मैं एज एन एडिटर जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे तो मैं चर्चा करूंगा। बट एज राजीव खंडेलवाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई थिंक illiteracy would be one thing that I would really want to focus on. I think वहाँ से शुरुआत सब चीज़ों की होती है और वहीं से अगर बदलाव हो गया तो सब बदलाव आई थिंक विल बी अ चेन रिएक्शन। अच्छा, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी कौन सी आप हेडलाइन बनाना चाहेंगे? हाँ, कुछ ब्रेकिंग बना, क्योंकि एडिटर आप हैं। कृतिका, आप भी बताएं। पहली बार टेलीविजन के शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा हुआ था, मारामारी लगी हुई थी, माइक टूट रहे थे। तो ये हमारी हेडलाइन बनेगी, पहली बार टेलीविजन के इतिहास में एक टेलीविजन शो के लिए फिल्म से ज्यादा प्रेस उमड़ कर आई। चलिए आज So what about government enforcing laws, new laws on citizens? What do you have to say about that? इस मुद्दे को आप कैसे ये करोगे? New laws as in? यार तुमसे बाहर मिल मैं नंबर देता हूँ, पूरा लंबा 1 घंटे का इंटरव्यू करेंगे। वो है नंबर है। आप फिलहाल कैसे उस चीज पे रिएक्ट करोगे? Because cameras are rolling, we want a reaction. As an editor. Yeah, sorry. किसे? What are you saying? अच्छा, तेरे एडिटर ने बोला कि लेके आना आज। हाँ, तो आज लेके आना है। मैं समझ सकता हूँ। सवाल पूछा और लेके आ जाओ। I understand. I can relate to it. She has to go through it. She understands my problem. Please help. Go for it. पूछो। हाँ, पूछो। Exactly. So with the new law that's being enforced for, with multiplexes, they have to show a Marathi cinema from 6 to 9 p.m. How would you react to that? What is your reaction on it? Shrishti, Kritika and Raji from the three of you. थोड़ी ना एडिटर है, मैं अकेला हूँ। Okay, ठीक है। आप बता दीजिए। इनकी तो बीट भी नहीं है वो। Right, आप बता दीजिए। हाँ, तो मैं ये बोलूँगा, सवाल वापस पूछो। The new law being enforced, which states that multiplexes have to show a Marathi cinema from 6 p.m. to 9 p.m. in multiplexes, and that's a compulsion. I think I shall leave it on the lawmakers to take a right call. I'm sure that they'll consult the audience, the film fraternity and everyone, and they'll arrive at something which is acceptable by both the film fraternity and the audience, and I think they'll go with the popular mandate. Right. Also, सनसनीखेज करना है इसको। हाँ, मैं करूँगा, मैं जब मैं अपने टेलीकास्ट करूँगा, मैं इस समय बहुत सारे हैंडल कर रहा हूँ फ्रंट। Right. Also, हाँ, सारे चैनल में चल जाएगा। Also, Rajiv, just one last thing, Shobha Day is being targeted by the Shiv Sena regarding the same. And, I'd request you to stick your questions to the show at hand, and this is a press conference for that. जी। As a reporter, सच का सामना, मैं वैसे भी जिंदगी में हर रोज सच का सामना हम लोग सब करते हैं, and but yeah, such will play an important role. I mean, in terms of deliverance of news, such will play a very important role. Honesty. Films take a backseat for you now? For these 5 months, yes. So how many episodes are we looking at? I think Nachi will. It's somewhere. It's 100 plus, anywhere between 100 and 130. कृतिका, आलोक, कृतिका, इससे पहले आपने डॉक्टर का किरदार प्ले किया, आप रिपोर्टर का किरदार प्ले कर रही हैं। आप दोनों में से बताएंगे कि दोनों से आपको कितनी मोहब्बत है? मुझे दोनों से बहुत मोहब्बत है, बिकॉज दोनों मेरे ही कैरेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज अ न्यू जर्नी। देखिए, जब कोई चीज़ नई होती है तो वो हमेशा उस टाइम आपको ज़्यादा प्यारी होती है। एंड ऑल्सो बोथ द कैरेक्टर्स, दैट वाज नॉट जस्ट अ डॉक्टर, दिस इज नॉट जस्ट अ रिपोर्टर, देयर ऑल्सो दिस ह्यूमन साइड टू बोथ, जो कि अलग होगी एंड इक्वली मुझे प्यारी होगी। बिल्कुल। जब हम पिछली बार मिले थे डॉक्टर के इसमें, तो आपने बहुत सारे रिपोर्टर्स का इलाज किया था, तो आप यहाँ पे आज बहुत सारे रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग भी करेंगी या एंकरिंग करेंगी कहीं? बिल्कुल। इसके बाद मैं सवाल डॉक्टर्स की रिपोर्टिंग करेंगे। Actually, in the first episode itself. Can we take the last question? Or we done?
अबे जीतू तेरी अरे कंकरिया या ब्रो यस 13 अप्रैल से रात 9 बजे सोनी पे मंडे से थर्सडे रिपोर्टर्स बहुत ही उत्साहित हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं इसलिए क्योंकि ये पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह का एक शो टेलीविजन पे आप देखेंगे। बहुत ही रोमांचक शो है, बहुत ही रोमांटिक शो है। जो कुछ भी आप एक टेलीविजन शो से उम्मीद करते हैं वो आपको इस शो में देखने को मिलेगा। कृतिका काफ़ी टाइम के बाद में आ रही है, मैं काफ़ी टाइम के बाद में आ रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। आप जो लोग हमें पसंद करते हैं उन लोगों के लिए देखने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज शोज जो टेलीविजन का की दुनिया को में शायद थोड़ा सा बदलाव लेकर आएगी। सर इसके लिए कितनी तैयारी की थी, बात करें? बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत। हम लोगों ने 1 महीने का वर्कशॉप रखा था जिसमें हम लोग रोज़ाना बैठते थे, हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते थे, हम लोग हमारे लिए खासकर न्यूज़ चैनल से लोगों को बुलाया गया था, कुछ रिपोर्टर्स को हमारे लिए बुलाया गया था उस वर्कशॉप में, जहाँ पर बैठ के मुझे, कृतिका और बाकी जितने भी हमारे फेलो एक्टर्स हैं उन सबको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। हमें काफ़ी वीडियोज़ दिखाए गए थे कि न्यूज़ रूम के अंदर क्या होता है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ किए जाते हैं, तो काफ़ी वीडियोज़ भी दिखाए गए थे। तो काफ़ी रिसर्च की गई है 1 महीने की तकरीबन। अब देखना ये है कि वो रिसर्च कितना काम आती है जब आप लोग इस शो को देखेंगे। सर इसमें रिपोर्टर कम हीरो ज़्यादा लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रिपोर्टर सारे हीरो होते हैं, बात करें कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं। तो जी हाँ, क्योंकि पर्दे पर हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिखना, आपने बोला तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं हीरो दिख रहा हूँ। बट आई थिंक पर्पज़ ये नहीं है कि कोई हीरो दिखे, आई थिंक पर्पज़ ये है कि एक अच्छा प्लेजेंट सा चेहरा दिखे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बाकी हों, चाहे कृतिका हो, चाहे वो बाकी एक्टर्स हों। आई थिंक ऑल ऑफ देम विल लुक नाइस एंड प्लेजेंट ऑन स्क्रीन। एक सेकंड, आई थिंक सॉरी क्या बोला आपने? सॉरी जी, you want to say something, Kritika? I'll take a breather. No, I think it's generally important. I think हर किसी के लिए न्यूज़ से तो इन टच रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की दुनिया में जब एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन और हम सबको एक जगह, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम बता सकें हम क्या सोचते हैं। तो इवन एज इंडिविजुअल्स मुझे लगता है कि न्यूज़ देखने की तो सबको ही ज़रूरत है, हमें कुछ ज़्यादा। और हम आजकल अलग एंगल से न्यूज़ देखते हैं, मतलब एक रिपोर्टर के तरीके से देखते हैं। हम उन लोगों को ज़्यादा देखते हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो जवाब दे रहे हैं आजकल। तो वो एक चेंज हो गया है। हीरो की बात हुई थी तो हाल ही में थोड़ा नीचे कर दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शशि कपूर जी की, बहुत खुशी हुई कि उनको ये ऑनर मिला। आई थिंक उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, अब मिला उन्हें, बहुत खुशी की बात है। सर ये सच का सामने के बाद ये शो है तो कितना बात करें, कितनी तैयारी इसमें अगर बात करें, काफ़ी क्या सीखा पहले वाले से, इसमें क्या अलग चीज़ है? सब अलग अलग शो हैं, वो मैं होस्ट कर रहा था सच का सामना, उसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिला था कि मैं कोई फिक्शन शो करूं। इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा इंटरेस्टिंग शो आए जिसको मैं हाँ बोलूं, और जैसे ही ये मुझे कहानी सुनाई गई शो की तो मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया था। तो अभी आप एज अ रिपोर्टर रोल निभा रहे हैं, तो अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हर रिपोर्टर को अपना एक दायरा भी मालूम होना चाहिए। हर रिपोर्टर को खबर लानी भी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, इतने सारे चैनल्स बन गए हैं, हमारा काम है खबर लेकर आना। तो मुझे लगता है कि जितनी ईमानदारी के साथ में रिपोर्टिंग की जाए उतना बेहतर होता है, उतने लंबे लॉन्ग टाइम में आई थिंक इट रियली हेल्प्स यू। तो आई थिंक ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिपोर्टिंग। थैंक यू।